Good morning, student. Now again, welcome in your bio class. From today, we will start revision test for Unit 1 examination. So, there are deleted some portion which are deleted from uh, your syllabus. It is in chapter 1. It is in basically in vegetative reproduction or asexual reproduction, uh, types of asexual reproduction. These all are deleted portion. The page number 8 where 1.2 sexual reproduction are given there. So we will start our revision test from 1.2 sexual reproduction. Already you have read sexual reproduction basically. Today's I just give you conclusions point, then give you some question answers. According question answers, we will try to sort out your problems. So sexual reproduction basically, sexual reproduction involve formations of male and female gamete. Understood? Male and female gametes either by the same individual or by different individual of the opposite sex. Clear? These gametes fuse to form a zygote which develop to form the new organisms. It is complex process and slow process as compared to asexual reproduction. Clear student? Asexual reproduction basically complex और slow process है. So in sexual reproduction, the result is offspring is formed which is not identical to the parents or amongst themselves. Clear? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद जो ऑफ स्प्रिंग्स मिलता है वो जस्ट अपने पेरेंट्स के जैसा नहीं है, बट कुछ वेरिएशंस लिए हुए होता है. इट इज़ नॉट आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स और अमंग्स्ट देमसेल्व्स. या कई सिबलिंग्स ऑफ स्प्रिंग्स हैं वो भी कभी एक दूसरे से 100% सेम नहीं होंगे, कुछ ना कुछ वेरिएशंस होगा. ठीक है. द स्टडी ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स, plants, animal or fungi show that they differ so greatly in external morphology. Clear? External morphology मतलब बाहर से देखने पर. Internal structure and the physiology. Clear? Internal structure और physiology मतलब जो process चल रही, जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हो रही है. व्हेन इट्स कम टू सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सरप्राइजिंगली दे शेयर अ सिमिलर पैटर्न. लेट अस डिस्कस व्हाट फीचर आर कॉमन इन डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स. क्लियर? सो इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन we will start. Before event of sexual reproduction, we just discuss this point. Before organisms have to reach a certain age of growth and maturity in their life before they can reproduce sexually. मतलब organisms को sexual reproduction के लिए कुछ टाइम, certain टाइम लेना होता है. ठीक है. तो this particular जो certain टाइम है, इसके बाद ही ग्रोथ और मैच्योरिटी होगी और वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या होगा, प्रिपेयर्ड होगा. द पीरियड ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड द जुवेनाइल फेज. ठीक है. वो पीरियड कौन सा कहलाता है? जुवेनाइल फेज. तो फर्स्ट पॉइंट आया जुवेनाइल फेज, जो तुम लोगों को याद रखना है. ठीक है. तो जुवेनाइल फेज, दिस वन, नाइल फेज. क्लियर स्टूडेंट? जुवेनाइल फेज वो फेज है कि जब ग्रोथ होती है और ग्रोथ के बाद वो फिर वेजिटेटिव फेज पे आता है
और उसके बाद वो रिप्रोडक्टिव फेज पर आता है। क्लियर? द एंड ऑफ जुवेनाइल और वेजिटेटिव फेज, यहाँ पे दो टर्म्स यूज हुए हैं। जुवेनाइल फेज फॉर किसके लिए हुआ है? एनिमल के लिए, एनिमल, और वेजिटेटिव फेज यूज हुआ है प्लांट्स के लिए। ठीक है, तो यदि प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंट स्टेज के बारे में स्टडी करेंगे, वी विल यूज़ वेजिटेटिव फेज, और एनिमल के लिए जुवेनाइल फेज। तो इन टर्म्स के जो डिफरेंसेस हैं ये आप लोगों को माइंड पर रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कीवर्ड्स के फॉर्म पर, जुवेनाइल फेज और वेजिटेटिव फेज। क्लियर? अब इसके बाद end of the juvenile phase or vegetative phase, then reproductive phase has start. Clear? juvenile phase और vegetative phase के बाद जो phase आती है, it is basically it is reproductive phase. Clear, student? Then the end of juvenile or vegetative phase, which is marks at the beginning of the reproductive phase, it can be seen in higher plants when they come to flower. यदि फ्लावरिंग शुरू हो गई है, प्लांट्स में यदि फ्लावरिंग शुरू हो गई है, तो इट इज़ कौन सी फेज़ हो गई? रिप्रोडक्टिव फेज़ हो गई। क्लियर? अब इसके बाद नेक्स्ट there are some plants, some examples are given there. ठीक है, just for examples we can take one examples. Few plants exhibit unusual flowering phenomena. कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें फ्लावरिंग फिनोमिना बहुत अनयूजुअल होता है। ठीक है, रेगुलर वे में नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल्स, बैम्बो स्पीशीज़। कौन सी स्पीशीज़ है? बैम्बो species flowers only once in their life. It is unusual phenomena. ठीक है, generally 50 to 100 years. It's produce large number of fruits. And another plant, Strophalanthus कुंथियाना, क्या है? स्ट्रॉविलैंथस कुंथियाना, नेम लर्न कर लीजिए। कुंथियाना, नील कुरेंजी, इसमें फ्लावर क्या आता है? 12 ईयर। तो कभी कभी क्वेश्चन इसमें बन सकता है। एज मैनी ऑफ वी वुड बी नोन दैट द प्लांट्स फ्लावर ड्यूरिंग सेप्टेम्बर टू अक्टूबर। यह भी इसमें कब आया था? 2006 में आया था। इट्स मास फ्लावरिंग ट्रांसफॉर्म लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ हिली एरिया ऑफ केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु into blue stretches and attract to large number of tourists. बहुत ही इसके flowers ब्लू कलर के होते हैं, पूरे उसमें मतलब फैले हुए होते हैं, और टूरिस्ट के लिए इस अट्रैक्टिंग पॉइंट्स हैं। टूरिस्ट ये टाइम सेलेक्ट करते हैं इन फ्लावर्स को देखने के लिए। इन एनिमल, जो एनिमल में जुवेनाइल फेज कब होती है? इन एनिमल द जुवेनाइल फेज इज फॉलोड बाय मॉर्फोलॉजिकल and physiological changes to active reproductive behavior. ठीक है, reproductive phase is also variable duration in different organisms. reproductive phase अलग अलग organisms में अलग अलग होगी। ठीक है, क्यों? उनकी लाइफ स्पैन के ऊपर डिपेंड करेगी। समझ में आया बेटा? यदि लाइफ स्पैन ज़्यादा ईयर का है तो उसकी जुवेनाइल फेज़ भी काफ़ी समय तक रहेगी। ठीक है, ग्रोथ फेज़ भी काफ़ी समय तक रहेगी। तो बेसिकली ये हुआ सब कुछ रिप्रोडक्टिव फेज़ के ग्रोथ के डिस्कशन में। अब आता है व्हाट इज़ ऑस्ट्रेजस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल, दिस टू टर्म्स। क्लियर? So cyclic changes during reproduction are called ostrich cycle, whereas in primates, monkey, ape or humans it is called menstrual cycle. ठीक है, तो menstrual cycle और ostrich cycle ये एनिमल्स में और प्राइमेट्स में होने वाली
प्रोसेस हैं, ठीक है, साइक्लिक चेंजेस हैं. क्लियर. वेयर इज अ मंकी ऐप और ह्यूमंस में मेंस्ट्रुअल साइकिल और उसमें ऑस्ट्रस साइकिल. किसमें? नॉन प्राइमेट्स एनिमल लाइक काउ, शिप, रैट, डियर, डॉग एंड टाइगर. क्लियर. इससे रिलेटेड एक और टर्म्स आता है कंटिन्यूस ब्रीडर और सेकंड जो है सीजनल ब्रीडर्स. कंटिन्यूस ब्रीडर्स और सीजनल ब्रीडर्स. द साइकिल ओनली ड्यूरिंग फेवरेबल सीजन्स in their reproductive phase are called as seasonal breeders, and other animals are reproductive active throughout their reproductive phase is called continuous breeder. Clear. पर्टिकुलर जो सीजन्स फेवरेबल टाइम पीरियड में यदि ब्रीडिंग पीरियड है, ठीक है, इसके बाद फिर ब्रीडिंग पीरियड नहीं होता है, इट इज़ कॉल्ड एज सीजनल ब्रीडर्स. और कुछ ऑर्गेनिजम्स कंटिन्यूस दे आर कंटिन्यूसली रिप्रोडक्टिवली एक्टिव थ्रू आउट देयर रिप्रोडक्टिव फेज इज कॉल्ड continuous breeder. Human being is a continuous breeder. So this term you just keep in your mind, it is very important. Clear, student? Now next point, both plants and animal hormones are responsible for the transitions between the three phases. Clear. एनिमल्स और प्लांट्स दोनों के लिए एक कॉमन फिनोमिना है. सम हार्मोन्स दे आर रिलीज टाइम टू टाइम एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांजिशन बिटवीन द थ्री फेज. इंटरेक्शन बिटवीन हार्मोन्स एंड सर्टेन environmental factors regulate their reproductive process and the associated behavior expressions of the organisms. अभी आपने रीड किया ना, कंटिन्यूस ब्रीडर, ठीक है, और सीजनल ब्रीडर. तो एनिमल्स और प्लांट्स दोनों में क्या होता है? हार्मोन्स होते हैं. ये कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो कि ये तीन फेज लाइफ में जो ऑलरेडी हैं. कौन कौन से थ्री फेज हैं? जुवेनाइन फेज, ग्रोथ फेज और थर्ड वन इज सेंसेंस फेज. कौन सी है? सेंसेंस फेज. सेंसेंस फेज ओल्ड फेज होती है. इन तीनों फेज के बीच में इंटरएक्शंस प्रोसेस हार्मोन्स के थ्रू होती है. एक प्रोसेस से दूसरा प्रोसेस, एक फेज से दूसरी फेज से तीसरी फेज के बीच में जो चेंजेस होते हैं, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? हार्मोन्स. So interaction between hormones and certain environmental factor, these regulate reproductive process. ये hormones और environmental factors reproductive process को regulate करते हैं, ठीक है. And the associated behavior expressions of the organisms, और इससे related जो behavior में जो change होता है उसको भी ये regulate करते हैं. तो ये जो reproductive phase behavior है, it is interaction between the hormones और environmental factors. ये दोनों के बीच में जो interaction हो रहा है ये regulate हो रहा है, ठीक है. Event of the sexual reproduction. अब event कौन सा है? तो basically there are three basically event है. First one is pre-fertilization, second one is fertilization, third one is post-fertilization. So there is three phase: pre-fertilization, fertilization and post-fertilization. It is event in sexual reproduction. Now, what is the difference between three phases? First one, pre-fertilization phases. Pre-fertilization phase मतलब fertilization के पहले कौन कौन सी event हो रहा है? The event which is going before fertilization, it is gametogenesis or gametes transfer. Each and every terms gets a special meaning.
So don't clash to each other. You have to read each and every की टर्म्स. तो यहाँ पे दो टर्म्स आए हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स पर, गैमेटोजेनेसिस, सेकेंड वन गैमेट्स ट्रांसफर. ठीक है, गैमेटोजेनेसिस द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स. ठीक है, गैमेट्स का फॉर्म होना ही गैमेटोजेनेसिस होता है. ठीक है, एक बेसिक डेफिनेशंस है. गैमेटोजेनेसिस रिफर टू द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ टू टाइप ऑफ गैमेट्स. और ये टू टाइप ऑफ गैमेट्स हमेशा टू टाइप के ही होते हैं, मेल गैमेट्स या फीमेल गैमेट्स. मेल गैमेट्स फॉर्म हो रहा है वो भी गैमेटोजेनेसिस होगा, फीमेल गैमेट्स फॉर्म होगा इट विल बी ऑल्सो गैमेटोजेनेसिस. गैमेट्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर, गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड. किसी का भी गैमेट्स हो, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है. ठीक है, गैमेट्स कैसे होते हैं, हमेशा हैप्लॉइड होते हैं. ठीक है, इन सम एल्गी. और ये गैमेट्स कभी कभी सेम हो सकता है, कभी कभी स्लाइडली उसमें डिफरेंस होता है, और कभी कभी बहुत बिगर डिफरेंस होता है. तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिफरेंसेस, और सेम है कि डिफरेंस हैं, द गैमेटोजेनेसिस टाइप्स ऑफ गैमेट्स बेसिकली थ्री टाइप के होते हैं. ठीक है, तो ये हेयर गिवन थ्री टाइप्स ऑफ गैमेट्स. दिस वन टाइप ऑफ गैमेट्स, दिस वन आइसोगैमेट्स, वन सेकेंड टाइप ऑफ गैमेट्स और थर्ड टाइप ऑफ गैमेट्स. ठीक है, इट इज ऑलरेडी गिवन देयर. दिस वन इज आइसोगैमेट्स. एग्जाम्पल्स क्लाइडोफोरा. आपको राइट द नेम ऑफ आइसोगैमेट्स, एग्जाम्पल्स द आइसोगैमेट्स. तो टाइप ऑफ क्लाइडोफोरा, सो मैनी एल्गीज कंसिस्ट ऑफ आइसोगैमेट्स. ठीक है, क्लाइडोफोरा क्या है, एक एल्गी. आपको पता है कि एल्गी प्लांट्स में लोएस्ट है, तो इसमें आइसोगैमेट्स है. ठीक है, हेट्रोगैमेट्स. हेट्रोगैमेट्स क्यों कह रहे हैं, बिकॉज देयर शेप आर हाईली डिफ्रेंशिएट. एक ये देखिए, दिस वन इज फीमेल गैमेट्स एंड दिस वन इज मेल गैमेट्स. ये कौन सा है, फीमेल गैमेट्स, और दिस वन इज मेल. कितना डिफरेंस है. ठीक है, और इसमें मेल और फीमेल दोनों सेम है. क्लियर. तो ये आ गया फीमेल गैमेट्स, मेल गैमेट्स. थर्ड वन इज, इट इज ह्यूमन बीइंग और oogamous. मतलब मीन्स बहुत ज़्यादा बेसिक डिफरेंस. दिस इज फीमेल. क्लियर. होमो सेपियंस, और दिस वन इज स्पर्म्स और मेल गैमेट्स, स्पर्म्स. क्लियर. तो देयर आर थ्री टाइप ऑफ गैमेट्स. इसके अलावा गैमेट्स के और कोई क्लासिफिकेशन नहीं है. गैमेट्स तीन टाइप के, या तो वो दोनों गैमेट्स सेम होंगे, या दोनों मेल और फीमेल गैमेट्स थोड़ा स्लाइडली डिफरेंस होगा, या वो हाईली बिहेवियर वाइज, स्ट्रक्चर वाइज कंप्लीटली डिफ्रेंशिएट होंगे. तो दीज आर द गैमेट्स. और फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड एज गैमेटोजेनेसिस. गैमेट्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, इट इज ऑलवेज हैप्लॉइड. हैप्लॉइड क्यों है, बिकॉज इन गैमेटोजेनेसिस इफ गैमेट्स आर फॉर्म देन इट इज ऑब्वियसली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विल गोइंग ऑन. और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा मीन्स टू मेंटेन क्रोमोसोम्स नंबर देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ गैमेट शुड बी हैप्लॉइड. ठीक है, ये एक नेचर की रिक्वायरमेंट है कि क्रोमोसोम्स मेंटेन रहे, पेरेंट्स के जैसे ही रहे, कंटिन्यूसली जनरेशन टू जनरेशन क्रोमोसोम्स नंबर चेंज ना हो, इसलिए गैमेट्स का हैप्लॉइड होना ही होगा. गैमेट्स हैप्लॉइड ही होगा और कोई दूसरा चांस इसमें नहीं है. क्लियर. तो होमोगैमेट्स, आइसोगैमेट्स एंड और हेट्रोगैमेट्स. ठीक है, अब यहाँ पर कुछ ऑर्गेनिजम्स में गैमेट्स को स्पेसिफिक नेम भी दिया हुआ है. जस्ट लाइक इन सच ऑर्गेनिजम्स मेल गैमेट्स इज एंथ्रोजोइड्स और स्पर्म, और फीमेल गैमेट्स इज एग और ओवम. फीमेल गैमेट्स हमेशा एग रहेगा, और मेल गैमेट्स क्या रहेगा, स्पर्म्स और एंथ्रोजोइड्स. तो एंथ्रोजोइड इज अ मेल गैमेट.
नाउ जस्ट कीप इन योर माइंड. ठीक है. अब इसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स. Sexuality in organisms, what is the meaning of this term? We have already discussed in before videos, but today we just give our conclusions point. Sexuality in organisms, it is generally involve the fusion of gametes from two different individual, but it is not always true. ठीक है. Plants may have both male and female reproductive structure in the same plants. Clear? Or different plants, same plants or different plants. So it is called as unisexual. क्लियर. यदि वो सेम प्लांट्स पर हैं, फीमेल मेल और सिमिलर अलग अलग प्लांट्स पर हैं, इट इज़ यूनिसेक्सुअल. ठीक है. इन सेवरल फंजाई और प्लांट्स दिस टर्म इज होमोथैलिक. सो इन टर्म्स को आप लोगों को माइंड पे रखना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सेम टर्म्स हैं और बट इनकी मीनिंग बहुत और फंक्शंस इनका बहुत ही डिफरेंट है. फर्स्ट इज़ होमोथैलिक. कौन सा टर्म्स लिया हम लोगों ने यहाँ पे? होमोथैलिक, दिस वन. होमोथैलिक एंड मोनोशियस आर यूज टू डिनोट बाइसेक्सुअल. ये टर्म्स तीनों एक जैसे हैं, होमोथैलिक, मोनोशियस और बाइसेक्सुअल. क्लियर. होमोथैलिक, monoecious or bisexual, and these all have same meaning. And heterothallic, dioecious terms use or describe unisexual. Unisexual, heterothallic और dioecious, ये same meaning. मतलब एक प्लांट्स पर या एक फ्लावर पर कोई भी एक सेक्स ऑर्गन ही होगा. डायोशियस मतलब टू डिफरेंट गैमेट्स develop into different flowers or different plants. हेट्रोथैलिक की दो अलग अलग प्लांट्स होंगे. ठीक है. तो ये क्या हो गया? होमोथैलिक, हेट्रोथैलिक, मोनोशियस, डायोशियस, बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल. क्लियर. अब इसमें भी डिफाइन किया है. इफ ओनली फीमेल पार्ट इज प्रेजेंट, इट इज कॉल्ड पिस्टिलेट और बेरिंग पिस्टल. ठीक है. तो पिस्टिलेट फ्लावर्स और प्लांट्स कौन सा होगा? जिसमें कि सिर्फ फीमेल पार्ट होगा. क्लियर. और यदि मेल पार्ट है, स्टैमिनेट्स, दूसरा टर्म्स दिया है स्टैमिनेट. तो ये टर्म्स आप क्लियर करोगे. क्लियर. नेक्स्ट, इन एनिमल, ये तो प्लांट्स के वो हो गया. एनिमल में क्या है? ऑल इंडिविजुअल ऑफ ऑल स्पीशीज आइदर मेल या फीमेल. ठीक है. या तो एनिमल में स्पेशलिटी है, या तो वो पूरी तरीके स्पीशीज़ में आइदर वो मेल होगा और वो फीमेल होगा. लेकिन देयर आर सम स्पीशीज़ विच पॉसेस बोथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. कुछ स्पीशीज़ हैं ह्यूमन उसमें भी, एनिमल्स में भी, जो कि दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को कंटेन करती हैं. इट इज़ बाइसेक्सुअल. तो ह्यूमन बीइंग इज़ अ unisexual or bisexual animal. It is, or bisexual organisms is earthworm, sponges, porifera. ठीक है. टैपवर्म, टीनिया सोलियम, लीचेज. ठीक है. दिस इज द एग्जाम्पल्स ऑफ बाइसेक्सुअल एनिमल. तो गिव्स द नेम ऑफ बाइसेक्सुअल एनिमल. एनिमल याद रखो, अर्थवर्म, स्पॉन्ज, टैपवर्म और लीच. ये किस में है? तुम लोग को पता है ना. स्पॉन्ज किस में है? पोरीफेरा पे. टैपवर्म किस पर है? टीनिया सोलियम, प्लेटीहेल्मिन्थेस पर. ठीक है. और ये लीच वगैरह किस में आ जाएगा? लीच आएगा नीमेटोड्स पे आ जाएगा. तो दीज आर द सम एग्जाम्पल्स ऑफ एनिमल विच कंटेन टू सेक्स ऑर्गन्स. इट इज़ कॉल्ड एज बाइसेक्सुअल. और बाइसेक्सुअल ऑर्गन उनको एनिमल नहीं कहेंगे, उनको क्या कहेंगे? हर्मोफ्रोडाइट. सो बाइसेक्सुअल एनिमल इज कॉल्ड एज हर्मोफ्रोडाइट.
ठीक है। और यूनिसेक्सुअल स्पीशीज कॉकरोच। क्लियर? तो दिस इज कॉल्ड एज सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स। क्लियर? कि हेट्रोथैलिक, होमोथैलिक, मोनोशियस, डाइशियस, यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, फिर पिस्टिलेट, स्टेमिनोड्स इन एनिमल, hermaphrodite or unisexual species. The examples of hermaphrodite hermaphrodite organisms. Now cell division during gametes formation. अब आता है कि gametes formation कैसे हो रहा है। तो बेसिकली gametes formation जो स्टार्ट होता है स्पेशली ऑर्गेनिजम्स में, वो टाइडोफाइट्स हो सकते हैं, टाइडोफाइट लाइक टाइडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, एंड मोस्ट ऑफ द एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, द पेरेंटल बॉडी इज ऑलवेज डिप्लॉयड। आप लोग की बॉडी अब कैसी है? डिप्लॉयड है। डिप्लॉयड बॉडी का होना एक कॉम्प्लेक्सिटी और इवोल्यूशनरी वाइज वो एक इवॉल्व्ड ऑर्गेनिजम्स पाएंगे। जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स हैं और बिगनिंग वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, मोस्टली वो हैप्लॉइड होते हैं। इसमें एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं जैसे मोनेरा, किंगडम मोनेरा, प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स, हैप्लॉइड, फंगी, ठीक है, एल्गी, हैप्लॉइड, ब्रायोफाइटम है, हैप्लॉइड डिप्लॉइड फेज कैसे जा रही है? इक्वालिटी पे जा रही है। टाइडोफाइट से हिप्लॉइड फेज रिड्यूस हो रही है और डिप्लॉइड फेज इंक्रीज हो रही है। तो दिस इज एक्चुअली पर्टिकुलर पोजीशन वेयर सेल डिविजन्स स्टार्ट ड्यूरिंग गैमेट्स फॉर्मेशन। क्लियर स्टूडेंट? तो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड फेज से आप लोग क्लियर हो चुके होंगे। हैप्लॉइड फेज व्हेन क्रोमोसोम्स नंबर इज x, ठीक है। डिप्लॉइड फेज व्हेन क्रोमोसोम्स नंबर इज 2x। 2x ह्यूमन बीइंग में 2x कितना हो गया? 46। हैप्लॉइड फेज मीन्स व्हेन ड्यूरिंग गैमेट्स फॉर्मेशन ओनली हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स नंबर और 23 क्रोमोसोम्स नंबर इन ईच गैमेट्स, ठीक है। और दोनों गैमेट्स के 26 क्रोमोसोम्स मिलकर 23 मिलकर कितने हो जाएंगे? 46। तो सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट्स फॉर्मेशन ये बेसिकली हैप्लॉइड डिप्लॉइड फेज को क्लियर करेगा। अब एक और टर्म्स आ रहा है कि मियोसाइट इज अ फेज और इट इज़ बेसिकली गैमेट्स मदर सेल। मियोसाइट, ये टर्म्स मियोसाइट आया है, इट इज़ बेसिकली गैमेट्स मदर सेल। ये क्या है? गैमेट्स मदर सेल। तो हमेशा गैमेट्स का फॉर्मेशन मियोसाइट से ही होगा। क्लियर? Gametes in diploid organisms are specific or specialized cell is formed. It is called as myocyte or gametes mother cell, which is going meiosis division, and end of the meiosis division the haploid gametes, haploid cells are formed, which is called as gametes. क्लियर स्टूडेंट? तो गैमेट्स किससे बन रहा है? मियोसाइट से। बट मियोसाइट कैसा है? इट इज़ मदर सेल है, तो क्रोमोसोम डिप्लॉयड होगा। कैसा होगा ये? डिप्लॉयड होगा। नाउ स्टूडेंट, आप इसी तरीके से आगे चैप्टर को रीड कर जाएंगे और इसके बेस पर क्वेश्चन आंसर करते जाएंगे। रिवीजन ज़रूर पढ़ना है और जो कीवर्ड्स हैं वो ज़रूर आपको स्टडी करना है। थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।